अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अंबरपेट पुलिस ने एक शख्स के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनकी लाश 21 अगस्त को अंबरपेट में जेएचएमसी डंपिंग यार्ड के करीब मूसा नदी के किनारे से मिली थी। दोनों का ताल्लुक बिहार के दरभंगा जिले से है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल कुंदी के किनारे पड़ी लाश के बारे में कॉल मौसूल हुई। मौके पर पहुंचने वाले अफसरों ने मकतूल को पाया, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल बताई जाती है। इसकी गर्दन में केबल की तार से सख्त जख्म थे। तफ्तीशकारों ने पाया कि मुतवफ़्फ़ी, जिसके बाद में शिनाख्त शराब के नाम से हुई, उन्होंने पहले बोडुप्पल में जावेद और उसकी बीवी मुस्कान के साथ रिहाइश का इश्तराक किया था। जावेद को शराब के अपनी बीवी के साथ रवैये पर शक हो गया और उसका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से झगड़ा और धमकियां हुई। बाहर जाने के बाद जावेद ने अमीरुल से बात की, जो माली दुश्मनी की वजह से शराब से रंजिश भी रखता था। दोनों ने मिलकर उसे कत्ल करने की साजिश की। अपने मंसूबे के मुताबिक उन्होंने 19 अगस्त की रात वो शराब को शराब नोशी का लालच देकर मूसा नदी के करीब एक वीरान जगह पर ले गए। झगड़े के बाद लाश फेंकने से पहले तार से उसका गला घोंट दिया। ये गिरफ्तारियां अंबरपेट पुलिस ने ईस्ट जोन कमिश्नर की टास्क फोर्स के ताउन से की है। Was tied with a rope and thrown on the Musi River. At the time of report, accused was not identified. After 10 days, a missing case was registered in the Mehdipatnam police station on September 1st. Based on that missing case, we identified the dead body belongs to one person, namely Muhammad Shohrab. He belongs to the Bihar state of Darbhanga district. And after identifying the deceased person, based on his call records and all other details, we identified 2 accused persons. Both are belongs to the Bihar state only. Uh, so based on CCTV footages and other evidences, we arrested these 2 persons and remanding today. The motive behind this murder is there are 2 reasons. One is one accused was a professional what is false ceiling worker, where the deceased was used to work under him. So after some time, he was deferred with him and went back to some other place, and he is doing the deceased doing work on his own. So based on that, he has some grudge on him. And one more thing, accused number 1, where he was recently married and brought her wife to the same place where the accused and deceased staying in Boduppal. So there, the accused, the victim, the deceased has some evil eye against her. So based on that, 2-3 times a simple quarrels happened between accused and deceased. Based on that one, he has also has some grudge on him, and both accused persons murdered this victim and thrown body in the Musi River. There is no cases as per our investigation till now. Later, we will verify whether any cases reported in Bihar or not. The deceased person not yet married. Only accused A1 is married. Thank you. हैदराबाद के मजाफाती इलाके नारसिंह की म्यूनिसिपल ऑफिस में एक खातून ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनेहारिका को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंचरेवला के रहने वाले विनोद के प्लॉट के LRS क्लियरेंस के लिए खातून ओहदेदार ने 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। वो 4 लाख रुपए वसूल करते हुए ACB के जाल में फंस गई। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। నమస్తే, DSP యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో హైదరాబాద్ సిటీ. మాకు వారం రోజుల క్రితం కంప్లైంట్ వచ్చేది. ఇక్కడ మంచిరేవుల నివాసి ఒక 1000 గజాలు LRS కోసం అప్లై చేశాడు. అతను LRS ఫీజు కూడా కట్టాడు, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేశాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ మణిహారిక చెప్పేసి అతన్ని ఒక 5 లక్షల రూపాయలు
అది విజిట్ కోసం అని చెప్పేసి విజిట్ చేశాక ఫైనల్గా ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వడానికి ఒక 5 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు. అతను 5 లక్షలు ఇవ్వలేనని చెప్పేసి మధ్యలో ఒకసారి వచ్చి కలిసి రిక్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని 4.5 లక్షలకు కుదించారు. 4.5 లక్షలలో ఈరోజు 11:50 టైంకి అతను 4 లక్షలు తీసుకొచ్చి ఆమె ఛాంబర్లోనే ఇచ్చాడు. ఛాంబర్లో ఆమె యాక్సెప్ట్ చేసేది, ఆ అమౌంట్ తీసుకున్నది, టేబుల్లో పెట్టుకున్నది. మేము అరెస్ట్ చేశాము, ఆ అమౌంట్ కూడా రికవరీ చేశాము. ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ప్రజలందరికీ ఇంకొక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే 1064 అనేది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ మాది, యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోది. డయల్ 1064. ఈ 1064ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడ ఎవరైనా కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా మిమ్మల్ని లంచం అడిగితే 1064 కాల్ చేసి కంప్లైంట్ చేయండి. దాని మీద తప్పనిసరిగా మేము చర్య తీసుకుంటాం. అది 24 గంటలు రన్ అయ్యేటువంటి ఫోన్ నెంబర్ అది. సార్ ఎక్కడెక్కడ సోదాలు చేస్తారు? ఇప్పుడు మణిహారిక టీపీఓ వారి ఇంట్లో కూడా సోదాలు చేస్తున్నాము. ఇంట్లో కూడా ఒక టీం ఉంది, సెర్చెస్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ సార్ ఇల్లు ఎక్కడ సార్? అల్కాపూర్ టౌన్షిప్, బెగోనియా. వేరే కాంప్లైంట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా సార్? ఇంకా కంప్లైంట్స్ రాలేదు, ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తాం ఫర్దర్గా. ఇది 1 డేలోనే అయిపోద్ది. ఈ రోజు ట్రాప్ వరకే ఈ రోజు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా 4 months వరకు ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది. అప్పుడు టోటల్గా అసలు ఇచ్చిన ఏమిటి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాం. అదే టౌన్ ప్లానింగ్ ఈ కంప్లైంట్ స్పెసిఫిక్గా మాకు టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళ మీదే వచ్చింది. ఓన్లీ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ అందులో మాట్లాడింది. సహకరించిన సహకరించిన వాళ్ళు ఎవరనేది కూడా ఫర్దర్గా ఇంకా ఎంక్వైరీ చేయాల్సిందే. ఈ రోజు అయితే ఎవరు లేరు, ఆమె ఛాంబర్లో ఒక్కరే ఉండే మనీ తీసుకున్నప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సార్. शहर हैदराबाद के फूलबाग इलाके में मौजूद एक मकान में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया और इसकी मुकामी लोगों ने इत्तला पुलिस को दी, जिस पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायज़ा लिया। बादज़ा काफ़ी जद्दोजहद के बाद आतिश फरो अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बादज़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। बादज़ा पुलिस ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। थोड़ी देर पहले जो है 100 से हमारा पेट्रोल कार को इन्फॉर्मेशन आया कि फूलबाग एरिया में घर में जो है आग लगी बोल के। फौरन जो है हमारा पेट्रोलिंग पार्टीज, ब्लू कोल्स और पेट्रोल कार पूरे आगे थे यहाँ पे। जब तक जो है मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, देखे तो जो है एरिया वाले पूरे जो है आजू बाजू वाले बकेटों से और पाइप से जो है मैक्सिमम आग को बुझा है। फायर इंजन भी आ गए तो भी पूरा अभी आग बुझा दी है। यहाँ पे किसको भी कुछ भी कैजुअलिटीज नहीं है, इंजुरीज नहीं है, ओनली थोड़ा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। वो कंप्लेंट ले लेंगे, हम कंप्लेंट लेके तहकीकात करेंगे कि कैसा आग लग गया, इसके ऊपर कुछ मिसचीफ है क्या है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके इसके ऊपर एक्शन लेंगे। थैंक यू। शहर हैदराबाद में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा देखा जा रहा। ऐसा ही एक वाकया दिलसुख नगर के एक पान शॉप पर देखा गया, जहां पर छोटी सी बात को लेकर पान शॉप पर मारपीट देखी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मारपीट हो रही। बादज़ा इसकी इत्तला पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। ये मेरे शौहर है। इन लोग कल रात को पान शॉप के लिए गए थे दिलसुख नगर पे। वहाँ पे जानलेवा हमला हुआ इनके ऊपर, सर पे मार दिए, सर खुल गया और हाथ की हड्डी टूट गई। बहुत बुरा मारे, 3 जने मिलके मारे इनको। और उस्मानिया में इनका इलाज चल रहा। वहाँ के डॉक्टर बोले 3 महीने का बेड रेस्ट बोले। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए का घर है मेरा। अब इनको 3 महीने का बेड रेस्ट बोले, अब कैसा चलना घर। मेरी रिक्वेस्ट है चैतन्य पुलिस सीआई साहब से और रक्षा गुंडा कमिश्नर साहब से, मेरे को इंसाफ होना साहब, बस। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरे साथ रात में जो है ना दिलसुख नगर पे मैं पान खाने के लिए गया था, तो वहाँ पे मेरे साथ 3 जने मिलके, पहले एक ही जना था नहा के मेरे साथ ढकलम ढकली करा। मैं डब्बे पे ले रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ जरा 2 मिनट रुक जाओ भाई बोल के बोल रहा हूँ, तो भी हट बोल के बोल रहा हूँ मेरे को, जरगू बोल के बोला। तो 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं ले लिया बात, तुम ले लो बोला। मैं तो मेरे को ढकल दिया। मेरे को ढकल देने के बाद में मैं भी उसको ढकला, नहीं मेरे पे हाथ उठा, मैं भी उठा।
तब ने फोन मारते कि और एक दो जने आए। आने के बाद जो है ना लटा ले लेके आए लोग, लट ले लेके आए, मेरे से बात करने के वास्ते बोल के सामने आके मेरे मुंह पे मारते कि और एक जना पीछे से लट लेके मारते कि गिर गया भाई, मेरे को उठने भी नहीं दिए, नॉन स्टॉप मारे मेरे को। वो इमरान खान बोल के मेरे एक भाई है, उनको फोन मारा, उन्होंने आए तक जर्रा लेट हो गए, उन्होंने आए तो लड़ाई भी नहीं होती थी शायद। अब वो इमरान खान आए तक मार दिए मेरे को बेइंतहाई आई, उन्होंने आने की तरफ से मैं बच गया। अब मेरे को जो है ना मैं पीएस को गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छा ये अपने चैतन्यपुरी पीएस को गया, मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पुलिस वाले मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पुलिस वाले एम्बुलेंस को बुला के मेरे को उस्मानिया को भेजे मेरे को। अब जो है ना मेरे हाथ की हड्डी और सर डैमेज हो गया, हाथ की हड्डी टूट गई और ये हिस्सा डैमेज हो गया, और ये हिस्सा डैमेज हो गया। इधर भी पीठ पे पूरे मारा है, पैरों पे भी मारा है पूरे। किस चीज से मारे और दांत भी थोड़ा लूज हो गया, दांत भी किस चीज से मारे लटों से मारे मेरे को। वहाँ पे सीसी कैमरे भी है वहाँ पे गली में पूरे। मेरे को सीपी साहब से अदबन गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ होना, और जो मेरे मासूम बच्चे, मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मेरे साथ नाहक के जुल्म हो गया, मेरे साथ हो गया, किसी और के साथ नहीं होना। मैं रिक्वेस्ट है सीपी साहब से, मेरा अदबन गुजारिश है, रक्षाकुंडा कमिश्नर साहब से भी मेरी अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, और एरिया सर्कल साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। मेरे को जो है ना 3 टाके गिरे मेरे को, तो दम बना आ रहा, चक्कर आ रही मेरे को, सर पे मारा पड़े, उल्टी हो गई, 2 दिन उल्टियां हो गए मेरे को। पुलिस वाले साथ में मेरे उस्मानिया आए, अच्छा रिस्पांस दिए, मेरे साथ वक्त दिए मेरे साथ। और मेरे भाई है कजन ब्रदर 1:30 बजे रात को मेरा भाई पान के लिए गए थे। पान के डब्बे पे कोई सरपरस्त लोग आके 3 जने मेरे भाई को धक्का धुक्की करके वहां पे मेरे भाई के ऊपर अकेले को देख के 3 जने मार दिए। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ रक्षाकुंडा हमारे बहुत कमिश्नर साहब से कि मेरे भाई के साथ इंसाफ होना। मेरा भाई ऑटो चलाता, मेरा भाई ऑटो है, मेरे भाई का छोटा मोटा बिजनेस है मेरे भाई का ऑटो का। उस मेरे भाई की हड्डी टूट गई, मेरे भाई के टाके पड़ गए सर पे और कमर पे मार पड़ गया। अब मेरे भाई के साथ मैं और हमारे चैतन्यपुरी सीआई साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, प्लीज नंबर रिक्वेस्ट है आपसे कि उन लोग को जल्द से जल्द पकड़ना और हमारे भाई के साथ इंसाफ होना। मैं कजन ब्रदर है मेरे भाई को छोटे छोटे बच्चे बेटियां हैं, कौन देखेंगे? ऐसा 5 शॉपों ने आके रॉडिनिज्म कर रहे, तो मेरे भाई के साथ अगर कुछ हो जाता, अगर बड़ा केस, तो कौन से देखने वाले? मेरे को एक ही है, मेरी रिक्वेस्ट है रक्षाकुंडा सीपी साहब से कि मेरे भाई को अच्छे से अच्छा इंसाफ मिलना, मेरे भाई के साथ इंसाफ होना। बस स्पॉट पे जब क्या था वो कुछ भी नहीं, मेरे भाई के ऊपर 3 जने अटैक कर रहे हैं, 3 जने मिलके मार रहे हैं। मैं जब पहुंच के वो लकड़ियां पकड़ा, मैं पकड़ती थी, भाग गए उन लोग छुड़ा के। एक 220 गाड़ी पे थे, एक्टिवा पे थे व्हाइट कलर की। मेरा भाई रोड पे गिरा हुआ था, मैं देखा, एक को पहचान लेता हूँ, तो बाकी के 2 लोग कौन है नहीं मालूम है, चेहरे पहचान ले सकते। मेरे भाई वहां पे नीचे रोड पे गिरा, पब्लिक देख रही, तो 5 चाव वाला भी देख रहा, वो 5 चाव वाले वहाँ दुकान वाले भी कोई भी इतनी रात में इलीगल चला रहे, आके कोई एक्शन पकड़े नहीं। रात के 1:30 बजे 1:30 पान शॉप खुला है। और वो मेरे को एक अच्छी रिक्वेस्ट है, वो बस मेरे भाई के साथ इंसाफ होना बस। शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद पिटला बुरुज फूलबाग में गैंग अटैक का वाकया पेश आया, जहां पर 2 भाइयों को 15 से 20 अफराद ने मिलकर बेदर्दी से मारा पीटा, जिसके बाद उन्होंने मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस ज़िम्मन में शिकायत भी दर्ज करवाई। बादजा मुतासरा ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात भी बताई और कहा कि बिला वजह उन पर हमला किया गया है, इसकी कोई वजह नहीं है। देखिए मुतासरा का मीडिया के सामने क्या कहना है। वालेकुम, मैं यहाँ पे डीसी हेडक्वार्टर पिटला बुरुज में रहता हूँ।
बस्ती में जो है छोटे भाई आते जाते रहते, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, तो बच्चों में घुरमघारी चल रही थी। छोटे भाई के साथ हाथापाई हुई, तो हम लोग गए कि ऐसा क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हो, तो वो लोग गाली गलौज करने लगे। फिर वो बात बस्ती के लोग जो है जाओ भाई आप घरों को बोल के हम आगू भिजा दिए। फिर इसके बाद जो है आधे घंटे के बाद मैं रोड पे आके ठहरा था अकेला, हमारे दोस्त साहब का इंतजार कर रहा था। तो बाकी के जो है जो इनको मारे थे पूरे जने मिल के आके मेरे को मारे, गैंग बना के। क्या है मारने की वजह, क्या है? और रीज़न उन लोगों को भी मालूम कि क्या आज क्या वार है भाई, तुम ना क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे, पहलवानी बता रहे क्या हमारे को, ऐसा बोल के मारना स्टार्ट करे। बोल रहे था यहाँ के लोग हैं पूरे, कहाँ रहने वाले हैं लोग? ये पेटला बुरुज DC बेट कर मारे आपको? 15-20 जने मिल के मारे। मतलब कुछ पुरानी खुसूमत है नहीं कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम या फिर जो है फर्स्ट टाइम? इससे पहले भी हुआ था, तो 1 साल हो रहा, वो मैटर क्लोज हो गया, फिर अभी ये नया आया। जब हमारे दूसरे भाई को मारे थे, अब हम दोनों को मारे। कंप्लेंट करे आप? हाँ, दोनों के नाम पे कंप्लेंट करें, MLC भी कराएं। दोनों के नाम मालूम है आपको? नामा 2-3 जनों के ही मालूम, बस नामा नहीं मालूम? नामा नहीं मालूम। कंप्लेंट दिया? कौन से केस में दिया? हुसैन आलम PS में कंप्लेंट दिया, उसमें ने कुछ MLC करा के आया कल सुबह में। हाँ, MLC करा के आया। क्या बोले डॉक्टर साहब? क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले थोड़ा नाक का प्रॉब्लम है, मॉर्निंग आओ बोल के बोले, अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है बोल के बोले। अच्छा, कुछ हथियार वगैरह इस्तेमाल करे, लटा वगैरह या खाली हाथ में? बैट था हाथ में कुछ एक के, तो सर पे मारे, अभी तक दर्द हो रहा हो। डॉक्टर्स अवेलेबल रहने की वजह से वापस आए, तो प्राइवेट में जाके बताना है फिलहाल। अब ये हद से ज़्यादा हो जा रहा, आने को जाते को पूरे के पूरे घूरमघारी कर रहे हैं, रॉडी शीटर का हिसाब हो जा रहा। कुछ नाम पे अगर गलती भी करें उनके बच्चे, हम जाके बात करें तो उल्टा बोल रहे हाउ करते तुम्हारी गांड फोड़ देते, हम आपको नहीं बोलना आगे ऐसा बोल के। यहाँ के बस्ती के बड़े लोग बोल रहे हैं। लास्ट टाइम इससे पहले भी झगड़ा हुआ 2 बार, तो आप लोग जो है कंप्लेंट करे थे, फिर केस वापस ले लिए बोल के सुना? हाँ, कंप्लेंट करे थे, केस वापस ले लिए कि हाँ भाई बच्चे हो गया, अब नहीं होता ऐसा बोले, तो केस वापस ले लिए थे। अब बड़े भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, तो बड़े बात हो गए थे, बड़े बात कर लिए थे बीच में कि अब नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा ऐसा, चलो जान दो, केसेस करना वापस ले लो बोल के। फिर अब जो झगड़ा हुआ अब बड़े आगे बात नहीं करे? नहीं करे, हम बात करने गए तो उल्टा बड़े भी हमारे से हाथापाई करे। लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और DCP मैम से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से कार्रवाई की जाए कि लोग का टाइगरीपना बहुत हो चुका है, आने जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग काम कारोबार पर जाने के लिए वो तो घूरमघारी चल रही है। हुसैन आलम PSS गुजारिश है कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।